لاڑکانہ سے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر شہلا رضا کے ہمراہ سجاول تنیوں گاؤں پہنچے اور ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے میجر سعید تنیوں کے لواحقین سے تعزیت کی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کے پولیٹیکل سیکرٹری جمیل احمد سومرو بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہمیں دکھ بھی ہے اور فخر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ شہید میجر سعید تنیوں نے اپنی جان قربان کر کے بہت بہادری کا کام کیا اور یہ جان قوم کے لیے نذرانہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری کی ہدایت پر پہنچے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس گاؤں کے روڈ کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ آج پولیس کا یوم شہادت ہے اور ان کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس کے بعد شہید میجر سعید تنیوں کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، گلدستے رکھے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ اس موقع پر ایم پی اے ندا، کمشنر لاڑکانہ گھنور علی لغاری، ڈی آئی جی لاڑکانہ، ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ اور ایس ایس پی لاڑکانہ بھی موجود تھے۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی مرکزی امام بارگاہ جعفریہ میں عشرہ محرم الحرام کے چوتھے مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس کے شرکاء سے مجلس وحدت مسلمین کے صوبائی نائب صدر سہیل اکبر شرازی، علامہ ذوالفقار علی سعیدی، مولانا حیدر علی ڈومکی اور مولانا قربان علی جعفری نے خطاب کیا۔ دوران خطاب انہوں نے مقصد کربلا پر روشنی ڈالی اور اہل بیت رسول کے مسائب بیان کیے۔ مجلس کے بعد عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا ہوئی۔ مجلس کے بعد نیاز و لنگر اور سبیل امام حسین کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مجلس کے دوران سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی مرکزی امام بارگاہ جعفریہ میں عشرہ محرم الحرام کی 5ویں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس کے شرکاء سے مجلس وحدت المسلمین کے صوبائی نائب صدر سہیل اکبر شرازی، علامہ ذوالفقار علی سعیدی، مولانا حیدر علی ڈومکی اور مولانا قربان علی جعفری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں قربانی اور شہادت کا فلسفہ سمجھاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں اپنی شہادت کے ذریعے اسلام کو زندہ کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین۔ محرم کا مہینہ ہمیں درس قربانی، شجاعت و حریت دیتا ہے۔ یہ کربلائی ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے جس میں امام حسین علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کے سمیت کربلا کے دشت میں میدان میں اپنے جانوں کی قربانی دے کر اسلام کے درخت آبیاری کی۔ یہ کربلا ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے درخت کی آبیاری کی اور ہمیں درس شہادت سمجھایا، ہمیں فلسفہ شہادت سمجھایا۔ محرم الحرام آتے ہی مسلمان یاد خانوادہ رسول میں آ جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں اور امام بارگاہوں میں مجالس کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، اور اس مجالس عزا میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، امام علی مقام کی فضیلت اور ان کی سیرت پہ بات کی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام کی آبیاری، اسلام کو جو خطرات تھے اس کو امام حسین نے بچایا، اپنے خانوادہ کی قربانی دے کر، اپنے جانوں کی اور اپنے جوانوں کی، اپنے بچوں کی قربانی دے کر اسلام کی آبیاری کی۔ ضلع انتظامیہ اور ایس ایس پی سبی کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے علاقے میں سیکورٹی کے بھی انتہائی سخت اقدامات کیے گئے۔ واک تھرو گیٹ کے ذریعے امام بارگاہ میں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مجلس کے بعد نیاز و لنگر اور سبیل امام حسین کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز سے بھی بلوچستان۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف کیس اور فارن فنڈنگ معاملے میں فرق ہے۔ جو آئی ایم ایف سے قرضہ بھی نہ لے سکے ان کی خاک کارکردگی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی گفتگو۔ اسلام آباد میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف سے قرضہ بھی نہ لے سکے ان کی خاک کارکردگی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس دفن اور فیصلہ سپریم کورٹ چلا گیا۔ بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے۔ اب اعتمادی اور اتحادی جماعتیں بے شک میڈیا کھیلیں۔ نواز شریف کیس اور فارن فنڈنگ معاملے میں فرق ہے۔ مزید کہا کہ جو آئی ایم ایف سے قرضہ بھی نہ لے سکے ان کی خاک کارکردگی ہوگی۔
پانی اور مہنگائی کے سیلاب کے بعد ٹرانسپورٹ بھی بند ہو گئی۔ قبل ازیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ سپریم کورٹ پہلی ہی سماعت میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ اڑا دے گی۔ آپ کو لے چلتے ہیں چنیوٹ کی جانب۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان تاجر برادری کی کاوشیں رنگ لے آئی۔ ملک بھر کے تاجروں کو بجلی کے بلوں میں لگایا گیا سپر ٹیکس 1 سال تک وصول نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بجلی کے بلوں پر زائد ٹیکس وصولی کا حکومتی فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور وفاقی وزیر برائے پانی بجلی خرم دستگیر نے آل پاکستان تاجر برادری کی وفد، جس میں تاجر رہنما وفد میں اجمل بلوچ، صدر پاکستان نعیم میر، جنرل سیکریٹری جمیل فخری، نائب صدر شاہد غفور پراچا، صدر پنجاب شامل تھے۔ اس موقع پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور خرم دستگیر نے بات کرتے ہوئے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چوہدری خالد حسین ساہی کے بیٹے چوہدری فیض الحسن ساہی چک حکیم شادی کے بندھن میں بندھنے پر شادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ چوہدری فیض الحسن ساہی کو زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر 2 صحباب کی بھرپور شرکت۔ گجرات سے دیکھتے ہیں چوہدری امجد اقبال بھٹی کی یہ رپورٹ۔ چوہدری خالد حسین سائی کے بیٹے چوہدری فیض الحسن سائی کو شادی کے بندھن میں بندھنے اور زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کا نیا سفر مبارک ہو، خوشیاں ان کا مقدر بنے۔ مہندی کا پروگرام چوہدری عثمان سائی نے کیا، جس میں دوست احباب نے شرکت کر کے مہندی میں 4 چاند لگا دیے۔ شرکت کرنے والوں میں چوہدری عثمان گجر، چوہدری اسرار گجر، چوہدری بابر گجر، چوہدری جبار سائی پنجاب پولیس، چوہدری راشد سائی، چوہدری جنید سائی، چوہدری جمشید سائی اور کافی دوست احباب نے شرکت کی۔ دعوت ولیمہ میں سرپرست اعلیٰ ماسٹر لیاقت صاحب، میاں ارشد صاحب، میاں افضل صاحب، میاں ذوالفقار حیدر، بابر گجر، چوہدری عثمان گجر، چوہدری راشد سائی، چوہدری جنید سائی، چوہدری عثمان سائی، چوہدری ظفر سائی، میاں طیب توصیف، چوہدری حسن جانی، مرزا شاہ زیب، چوہدری ظہیر عباس، چوہدری فرحان سائی، چوہدری ذیشان بگنا، چوہدری عرفان بگنا، چوہدری عمر گرایا، چوہدری ابرار سائی، چوہدری کاشف سائی نے ولیمہ میں شرکت کی۔ چوہدری امجد اقبال بھٹی، آن نیوز گجرات۔ آپ کو لیے چلتے ہیں شیخوپورہ کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف کے نومنتخب رکن صوبائی اسمبلی صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چوہدری خرم شہزاد ورگ ایڈوکیٹ کو صوبائی وزیر پارلیمانی امور کا قلمدان سونپے جانے پر پی ٹی آئی شیخوپورہ کے رہنماؤں الحاج ملک محمد اسلم بلوچ، ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی، شیخ ذیشان احمد، شیخ شہروز اشفاق، میاں افضال حیدر، راشد منیر ایڈوکیٹ، شیخ نذیر احمد، بابر اسرار بھٹی خان، عبد المناف خان ایڈوکیٹ، چوہدری گلفام ریاض ورگ، شکیلہ ارشد دیگر نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ خرم شہزاد ورگ ایڈوکیٹ امور ذمہ داری کی انجام دہی میں کوئی کسر اٹھانا رکھیں گے، جبکہ چوہدری خرم شہزاد ورگ ایم پی اے نے صوبائی وزیر پارلیمانی امور نامزد ہونے پر پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ تعالی قیادت کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ میری اولین ترجیح چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وی این کی تکمیل ہے، جس کی خاطر ایوانوں کے اندر اور باہر بھرپور جدوجہد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی عوام کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا، اب صوبے کی ترقی خوشحالی کا خواب جلد شرمندہ تعبیر ہوگا، عوام کو ہر سطح پر ریلیف کی فراہمی ممکن ہوگی۔ پی ٹی آئی کے تمام ارکان پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کے دستے بازو بن کر عمران خان کے وی این کی تکمیل یقینی بنائیں گے۔ خبر ہے شیخوپورہ سے، معروف قانوندان قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے افغانستان میں امریکی ڈرون حملے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان ہمارا برادری اسلام ملک ہے۔ امریکہ نے افغانستان کی سلامتی اور خود مختاری کو پامال کیا۔ امریکی جارحیت نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستانی قوم مظلوموں کے ہمیشہ ساتھ کھڑی رہی اور آئندہ بھی کسی کو انسانی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے گی، جارح قوتوں کے خلاف آواز بلند کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں اور ریاستی اداروں کو ملکی مفاد میں مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں، اختلافی معاملات کو طے کریں۔ اس وقت ملک کسی بھی محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مہنگائی اور ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف پوری قوم سراپا احتجاج ہے۔ حکمرانوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ملک پہلے ہی معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا ہے۔ مہنگائی نے غریب کو 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم کر دیا۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین الحاج ملک محمد اسلم بلوچ نے کہا کہ مخالفین کی خواہش ہے کہ عام انتخابات سے انعقاد سے پہلے کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو جائے۔ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے،
جس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا عوام میں فیصلہ مذاق بن چکا ہے۔ قوم نے اوورسیز پاکستانیوں پر شکوک و شبہات ظاہر کرنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ پنجاب میں گورننس کی بہتری ان کی پہلی ترجیح ہے۔ پنجاب کی خوشحالی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ کہا کہ آئندہ عام انتخابات تک مخالفین کی سیاست اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو جائے گی۔ عمران خان نے پی ڈی ایم کی سیاست منطقی انجام تک پہنچا دی۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کی قیادت کے اعصاب پر عمران خان سوار ہے۔ امپورٹر ٹولے اور چیف الیکشن کمشنر کا گٹھ جوڑ قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ انشاءاللہ عوام کی طاقت سے اس گٹھ جوڑ کو توڑیں گے۔ عمران خان نے 13 جماعتوں کی حکومت کے اقتدار کو چیلنج کر رکھا ہے۔ پنجاب کو اب نون کی آخری سیاسی آرامگاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما چودھری گلفام ریاض ورک نے کہا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کے خلاف پوری قوم سراپا احتجاج ہے۔ ملک میں جگہ جگہ عوام سڑکوں پر ہیں۔ الیکشن کمیشن کے دفاتر کا گھیراؤ کر کے چیف الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نواز لیگ کی بھی ٹیم بن جانے والا الیکشن کمیشن قوم کو قبول نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا تعصب ان کے فیصلوں اور پالیسیوں سے سامنے آ چکا ہے۔ فوراً فنڈنگ کیس کے فیصلے میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئی۔ کہا کہ صوبائی اور وفاقی ایوانوں نے نشستوں کے اعتبار سے پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان طویل عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف امتیازی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ 2 اگست 2022 کو ممنوعہ فنڈنگ کے مقدمے کا فیصلہ آئین اور قانون سے مکمل انحراف ہے، جس میں تحریک انصاف کے خلاف انتقام سے بھرپور کارروائی، حقائق کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کا ذیلی ادارہ بن چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کے موجودہ اراکین بلا تاخیر اپنی نشستوں سے مستعفی ہوں گے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں پولیس کی کارروائی، لوٹی ہوئی موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ جی بالکل، خیرپور ناتھن شاہ میں سٹی صدر تھانے کے ایس ایچ او علی اکبر چنا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ایک روز قبل گاؤں جمال خان کے مکین کبیر ولد منیر لغاری سے نامعلوم مسلح افراد نے اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل سی ڈی ہونڈا ماڈل 2018 لوٹ کر فرار ہو گئے تھے، جس کو پولیس ایس ایچ او علی اکبر چنا نے کارروائی کرتے ہوئے 24 گھنٹوں میں ریکور کروا کے مالکان کے حوالے کر دیا۔ موٹر سائیکل مالکان نے گاڑی ملنے کی خوشی میں ایس ایچ او علی اکبر چنا اور اس کی ٹیم کو ہار پہنائے اور پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر ایس ایچ او علی اکبر چنا کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہر میں امن و امان برقرار رکھنا اور شہریوں کی جان و مال کی ذمہ داری کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم کسی بھی جرائم پیشہ عناصر کو نہیں بخشیں گے۔ چوری تھی وئی ہے جو تمام ماشاءاللہ تو جلدی ریکور کرائی ہے، ان جي حوالے سان تव्हां छा चवणु चाहींदो؟ असांखे जीअं कल्ह इंफॉर्मेशन मिली नंढड़ो अचे पियो पंहिंजे घर खां, उन खां हमरान जेको आहे सो फुर करे जेको आहे असांखे जीअं ई इंफॉर्मेशन मिली उन महिल ई तुरत एक्शन कयोसीं, ॻोल्हा फ़ोला जारी कईसीं। उन ते वञी असां जवाबदारनि जे घरनि ताईं पहुतासीं, रिकवरी कईसीं गाॾी, ऐं गाॾी हिन जे हवाले कई आदिड़े जे। इंशाअल्लाह ताला जेको ॾोह कंदो उनखे छॾिणो न आहे, ऐं न छॾींदासीं बि सही। क्राइम जे ख़िलाफ़ हमेशह रहिया आहियूं, हमेशह रहंदासीं। केन शाह वासन खे को पैगाम ॾींदो अमन अमान जे हवाले सां? असां केन शाह वासन खे, दोस्तनि खे, जेके असांजा शहरी आहिनि उन्हनि खे इहो पैगाम ॾियूं था त ख़ासि करे लापरवाही तमामु घणी करनि था। मां तक़रीबन ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ عشرہ محرم الحرام مرید کے اور گرد و نواح میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مرید کے تحصیل میں 20 کیٹیگری اے اور 35 کیٹیگری بی کی امام بارگاہیں ہیں۔ اس کے علاوہ 150 کے قریب روزانہ چھوٹے بڑے مجالس عزاداری کے پروگرام ہوتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے تحصیل بھر میں دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ 1000 کے قریب پولیس اہلکار دن رات ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ خفیہ کیمروں کے ذریعے نگرانی اور واک تھرو گریڈز میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے چیکنگ کی جا رہی ہے۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلسل پیٹرولنگ اور فلیگ مارچ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اے ایس پی مرید کے ڈاکٹر عبدالحنان کا کہنا ہے کہ مرید کے اتحاد، محبت اور مذہبی ہم آہنگی کی تحصیل ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ امن و امان کنٹرول رکھنے کے لیے امن کمیٹیوں کی مکمل حمایت حاصل ہے، جبکہ کسی کو بھی بغیر اجازت لنگر تقسیم کرنے، سبیل لگانے اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں۔ ذوالجناح تعزیہ کے جلوس کے روٹس کو مکمل طور پر سیل کر کے ایک ہی خارجی اور داخلی راستہ بنایا جاتا ہے، جبکہ جلوس کے راستے کے تمام اور ادھر کچہری برانچ پوسٹ آفس عملے کی منمانیاں شہری خوار ہونے لگے۔ لفافہ رجسٹری اور اے ڈی مہیا نہیں کیے جاتے۔ وکلاء کلرکوں کو
पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। मुरीदके में बाकी शहरों की तरह भी मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में जुलूस और मजालिस का इनकाद किया जा रहा है यहाँ पे, जिस सिलसिले में जो पुलिस का जो रोल है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ निभाया जा रहा है। इसमें हमने फ्लैग मार्चेस भी कंडक्ट किए हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ हमने यहाँ पे सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस भी कंडक्ट करवाए हैं, और जो मजालिस और प्रोसेशंस के लिए हमने 3 लेयर्ड सिक्योरिटी प्लान जो है वो DPO साहब की तरफ से इशू किया गया है, जिसमें हमारे जो बाकी अमन कमेटी के मेंबरान हैं वो भी इस चीज़ को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, पुलिस भी सुपरवाइज़ कर रही है, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। CCTV कैमराज और जो लाइटों का सिलसिला है वो भी AC साहब ने यहाँ पे मुकम्मल करवाया है। और इधर कचहरी ब्रांच पोस्ट ऑफिस अमले की मनमानियां शहरी ख्वार होने लगे। लफाफा रजिस्ट्री और AD मुहैया नहीं किए जाते। वकला क्लर्कों का पुरअमन एहतजाज। शेखुपुरा जिला कचहरी ब्रांच में वाक़या पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन की मनमानियां अरूज पर। ड्यूटी पर लेट आने के अलावा वकला क्लर्कों को UMS लफाफा रजिस्ट्री मुहैया नहीं किए जाते। वकला क्लर्कों का पोस्ट ऑफिस कचहरी ब्रांच में पुरअमन एहतजाज। आला हुकाम और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की हिदायत पर जब भी कोई नया केस दायर किया जाता है तो इस फाइल के साथ मदा अलियान की तादाद के मुताबिक लफाफा रजिस्ट्री और AD लफ करना ज़रूरी है। अगर दावे के साथ ये दस्तावेजात लफ ना किए जाएं तो केस दायर नहीं होता, जिसकी बाबत जब क्लर्क हजरात पोस्ट ऑफिस में लफाफा रजिस्ट्री AD लेने जाते हैं तो वहाँ पर बैठा अमला इब्राहिम नामी शख्स, जो कि इंतहाई बदजुबान है, हर वक्त बदतमीजी से पेश आता है। कहता है कि लफाफा रजिस्ट्री वगैरह ख़त्म हो चुके हैं और 1 माह से हमें कोई UMS लफाफा रजिस्ट्री वगैरह लाहौर ब्रांच से महसूल नहीं हो रहे। आप GPO ऑफिस चले जाएं, और जब साइलिन GPO ऑफिस जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपनी कचहरी ब्रांच पोस्ट ऑफिस चले जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन का रवैया हाकमाना बना हुआ है, जबकि ड्यूटी टाइम पर आना मुलाजमीन अपनी तौहीन समझते हैं। शहरियों और वकला क्लर्कों ने पुरअमन एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि महंगाई ने पहले ही जीना दोभर किया, ऊपर से पोस्ट ऑफिस कचहरी ब्रांच के अमले ने हमें मज़ीद परेशानी में डाल रखा है। ज़राए के मुताबिक इब्राहिम नामी क्लर्क इससे कबल भी नहायत मुतनाज़ा रहा और इसे मुख्तलिफ शिकायत पर तब्दील भी कर दिया गया था, मगर ये असर व रसूख की बना पर दोबारा तैनात हो गया और फिर से शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है, जिस पर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि पोस्ट ऑफिस के अमले ने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। ईद की जो मौत है वो कौम की हयात है और शोहदा की कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान है। शेखुपुरा पुलिस का अपने शोहदा की याद में एक शानदार तकरीब का एहतमाम। निजी स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमे, तकारीर और टैबलो पेश करके शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। लोक गुलकार बाबा ग्रुप और आरफा सिटर्स ने शोहदा की अजमत अपने अंदाज में बयान की। DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार ने शोहदा के बच्चों और फैमिलीज में तोहफे तकसीम किए। एडिशनल सेशन जज शेख मोहम्मद नईम और MPA खुरम शहजाद वर्क ने शोहदा डे के मौके पर शोहदा की कुर्बानियों को सराहा, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अमजद, एडिशनल सेशन जज राना मोहम्मद इशफाक, जर्नलिस्ट साहबान, DSPs, SHOs और पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। आपको लिए चलते हैं साहिवाल की जानिब। आज 60 बरजवाला इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब में मजलिस आज़ा का एहतमाम किया गया। मजलिस में खिताब कारी हसनैन ऑफ ईरान और नोहा खानी की गई। मातमदारी की और नोहा खान फरहान अली वारिस कराची वाले DPO साहिवाल सादिक बलोच ने अपनी निगरानी में तमाम इंतजाम देखे। बानी कसर अबू तालिब 60 बरजवाला शफकत रसूल, आसिफ रसूल, जिक्रिया रसूल, मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर। सुन वफा बेटा बिना है ओ करबल दिशा मशकीज़ा है मशकीज़ा तावीज़ वफा है मशकीज़ा वफा है मशकीज़ा ये मशका लम्हों ये नजदा पटके पे रकम है अब्बास का अलम है अब्बास का अलम है। को अपनी सिफाते हमीदा में देखना चाहती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी मूसा को देखना जो है
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जनाब याकूब के सब्र को देखना चाहती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम जनाब यूसुफ के हुस्न जमाल को देखनी चाहती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका सैयदो सरदार फरमाते हैं, शौक है 70 लाख अंबिया की जियारत का शौक है, उनकी तमाम सिफात को देखना है। फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, आओ मेरे भाई अली के चेहरे को देखो, अंबिया की जियारत नसीब होगी। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का धान की पैदावार बढ़ाओ के मंसूबे के तहत महकमा ज़राअत और सीखारियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर मतवातर प्रोग्राम किए जा रहे हैं। गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के धान की पैदावार बढ़ाओ के मंसूबे के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का धान की पैदावार में इजाफा कौमी मंसूबे के तहत हर गाँव में धान के फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत गाँव चक हकीम में धान की पैदावार बढ़ाओ के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चक हकीम में प्रोग्राम चौधरी अहमद खान शाही के डेरे पर किया गया, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर अली असद यूसुफ ने ज़मींदारों को धान की फसल में जड़ी बूटियों के नुकसान और उनकी तलफी के मुतल्लिक बताया। ज़राअत ऑफिसर हसन रसा ने मशीनी तरीका काश्त के मुतल्लिक जदीद मशवरे दिए। ज़राअत ऑफिसर खारियाँ इशफाक अहमद जट ने ज़मींदारों को खादों के मुतल्लिक भी मशवरे दिए। मोहम्मद असलम फील्ड असिस्टेंट की बेहतरीन कारकर्दगी पर असिस्टेंट डायरेक्टर अली असद यूसुफ ने शाबाश दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मिशन धान बढ़ाओ प्रोग्राम में कसीर तादाद में ज़मींदारों ने शिरकत की, जबकि अहले दही ने महकमा ज़राअत को ऐसे प्रोग्राम करने पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान बागो बहार चौकी इंचार्ज फैज़ रसूल ने अपनी टीम के हमरा जुए के अड्डे पर छापा मारकर मुलजिमान को गिरफ्तार करके दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली। बागो बहार चौकी इंचार्ज फैज़ रसूल अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए जुए के अड्डे पर छापा मारकर जवारियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से ताश के पत्ते और नकदी रकम भी बरामद कर ली। पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई बागो बहार के इलाके पीर चन्नन पनन में की गई। चौकी इंचार्ज फैज़ रसूल ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तला मिली कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। हमने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वाले मुलजिमान मुनीर अहमद, मोहम्मद आरिफ, अल्लाह वधाया और अब्दुल करीम को गिरफ्तार करके ताश के पत्ते, दाव पर लगी नकदी रकम बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ASI फैज़ रसूल का मज़ीद कहना था कि जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अपनी ड्यूटी को इबादत समझकर अदा करता हूँ। जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोश किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। और इधर खैरपुर के नवाही इलाका कोट लालू जाज लिंक रोड पर संगार कम्युनिकेशन की दुकान को अचानक शॉर्ट सर्किट की बायस आग लग गई। दुकान में पड़ा मोबाइल फ़ोन, रोक रकम, कंप्यूटर समेत मुकम्मल सामान जलकर खाकसर हो गया। अहले इलाका ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक मुकम्मल सामान जल चुका था। मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। पतोकी में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। पतोकी लंडा बाजार में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। 20 से ज़ायद दुकानें आग की लपेट में आ गई। रेस्क्यू 1112 तहसील पतोकी की खसूसी टीमों ने हैवी मशीनरी की मदद से बर वक्त ऑपरेशन करके आग पर काबू पा लिया। अवामी सियासी समाजी हलकों का रेस्क्यू 1112 तहसील पतोकी को खराजे तहसीन। रुख करते हैं समुंदरी का। थाना मुरीदवाला के इलाका 204 गाफबे के करीब कार और नामालूम ट्रक में तसादम का वाक़या पेश आया। हादसे में कार ड्राइवर मौके पर दम तोड़ गया। जाम भाग शख्स की शनाख्त मोहम्मद सकलैन के नाम से हुई, जिसकी उम्र 40 साल बताई जाती है। जाम भाग शख्स का ताल्लुक 57 रेबे जड़ावाला से बताया जाता है। रेस्क्यू 1112 ने लाश को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक ड्राइवर ट्रक समेत मौके से फरार होने में कामयाब। नामालूम ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। पाकपतन में बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम बुजुर्ग और पंजाबी जुबान के पहले सूफी शायर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर की सबसे बड़ी रस्म बहशती दरवाजे के पहले रोज कफल कशाई कर दी गई। पहले रोज 2 लाख से ज़ायद ज़ायरीन बहशती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल करेंगे। आस्ताना आलिया हज़रत बाबा फरीद की सजादा जानशीन दीवान मदूदो मासूद चिश्ती ने बहशती दरवाजे के कफल कशाई की तकरीब में DC पाकपतन अहमद सुहेल कैफी, DPO नसीबुल्लाह खान, औलाद गंजशकर, दीवान असमत सईद मोहम्मद चिश्ती, दीवान उस्मान फरीद चिश्ती, दीवान हामिद मदूद मसूद चिश्ती समेत दुनिया भर से आए उलमा, मुशाइख आज़म, ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कफल कुशाई के दौरान फ़िज़ा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर,
और हक फरीद या फरीद के नारों से गूंज उठी। इस मौके पर मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। जिले इंतजामिया के मुताबिक पहले रोज 2 लाख ज़ायरीन बहशती दरवाजे गुजरने की सादत हासिल करेंगे। एक और खबर है पत्तों से। मोहम्मद रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों में अचानक आग लग गई। तकरीबन 24 के करीब छोटी बड़ी दुकानें जल गई, जिनमें पड़ा तकरीबन 1 करोड़ रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया, जबकि 126 दुकानों को बचा लिया गया। पत्तों की नशात मार्केट कॉलेज रोड के करीब अचानक आग लग गई, ताहम आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से फूलनगर और अनाला खुर्द से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मंगवाया गया। मार्केट में तकरीबन 150 के करीब छोटी बड़ी दुकानें थीं। आग से 24 दुकानें मुतासिर हुई, जो सारी की सारी कपड़े की हैं। आग से तकरीबन दुकानों में 1 करोड़ रुपए मालियत का नुकसान हुआ, जबकि रेस्क्यू 112 की टीम ने 10 करोड़ का मजीद नुकसान होने से बचा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट और रेस्क्यू एंड सेफी ऑफिसर राबिया खलील खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। आपको ले चलते हैं हरिपुर की जानिब। मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मुजालिस का सिलसिला जारी। 5 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस सैयद कासिम शाह के घर से बरामद हुआ। अज़ादारान ने सीना कोबी और जंजीर जनी की। हरिपुर पुलिस की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। डीपीओ हरिपुर जुलूस की निगरानी करते रहे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हरिपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। 5 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस कलाबाट सेक्टर नंबर 4 से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बरगाह हसन मुज्तबा में इख्तिताम पज़ीर होगा। इस दौरान जुलूस के शुरका सीना कोबी और जंजीर जनी करेंगे। जुलूस के रास्ते में जगह जगह मीठे पानी की सबीलें लगाई गई। इस मौके पर डीपीओ हरिपुर अरेसी हरिपुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भी पुलिस आई हुई है, रिजर्व पुलिस भी है, एलीट के अफसरान और जवान भी आप देख रहे हैं, और इसके अलावा इंटेलिजेंस के जो लोग हैं सफ़ेद पर्चात में और सिविल्स में वो भी हैं। आपने चेक किया होगा मुख्तलिफ़ जगहों पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रूफ टॉप हैं, छतों को भी कवर किया गया है ताकि किसी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़या ऐसा पेश ना आए। जारी हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम सबको फैसिलिटेट कर सकें, किसी को इस जुलूस के दौरान किसी से भी किसी तरह का मसला ना हो, रोड का कोई इशू ना हो, सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला ना हो, या टाइमिंग्स के हवाले से किसी को इशू ना हो। हरिपुर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। जुलूस के रास्ते में जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। इसके साथ साथ वॉक थ्रू गेट लगाए गए। रेस्क्यू 112 की मोबाइल एम्बुलेंस भी जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए मौजूद रही। इसके साथ TMA खलाबाट और महकमा सैन की टीमें भी मौके पर मौजूद थी। खबर है तहसील कोट छुट्टा से। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अंधाधुंध जालमाना टैक्स लगाए गए, जिसके खिलाफ अंजुमन ताशरान ने अपनी ज़ेर सदारत एक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें ताशरान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। एहतजाज में ताशरों ने आटे वाले ड्रम और बैनर्स उठा रखे थे। हुकूमत वक्त ने ताशरों के चूल्हे बंद कर दिए। एक यूनिट वाले कंज्यूमर को भी 9 से 10 हज़ार बिल आया। छोटे तबके के ताजिर ये बोझ नहीं उठा सकते। हुकूमत से भरपूर मजम्मत करते हुए कहा कि ताजिर ये बिल बिजली के नहीं जमा करवाएंगे, फ़ौरन ये बिल मुआफ़ किए जाएं। बिजली के बिलों को नजर आतिश भी किया गया और अवाम में भी शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। अगर ये बिल मुआफ़ ना किए गए तो मज़ीद रैली भी निकाली जाएगी। आज हज़ारों हैं, कल सैकड़ों होंगे। असा क्या इन बच्चों को पालो या अपने बिल भरो बिजली दे, लिहाजा कोट छुट्टा या खानपुर जो बिजली के बिल तो जुल्म था पे, गरीब अवाम बहुत परेशान है। लिहाजा वज़ीर आज़म को साड़ी अपील है कि इन्हें तो जरा शफकत की हुई है। आपको ले चलते हैं नौशहरों फेरोज की जानिब। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों का गंदा पानी ना निकालने पर सख्त एहतजाज। मुहर्रम उल हराम के मौके पर जुलूस के रास्तों पर गंदा पानी खड़ा होने की वजह से अज़ादारों और शहरियों का एहतजाज। गंदा पानी जल्द से जल्द निकलवाया जाए, बसूरत दीगर हम सख्त एहतजाज पर मजबूर होंगे। शहरियों का ज़िले इंसानिया से मुतालबा है। सदोकी रोड एक्सीडेंट में नौजवान जाम बहक हो गया। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक बाउंड्री के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोहसिन भट्टी हलाक हो गया। मोहसिन भट्टी, यूसुफ भट्टी, अकरम भट्टी, बुनिया अमीन भट्टी, जाहिद और शाहिद भट्टी का भांजा था। मोहसिन भट्टी 4 बहनों, एक माँ और एक भाई को पीछे रोते हुए छोड़ गया। मोहसिन भट्टी अपने घर में कमा कर चलाने वाला वाहिद कफील था। मोहसिन भट्टी की डेड बॉडी उनके घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। हजारों सोगवारों में उनका नमाज जनाजा अदा किया गया। नमाज जनाजा पीर गुलाम मजदद सदीकी साहब ने पढ़ाया। मोहसिन भट्टी का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव सदूकी में अदा करके सपुर्दे खाक कर दिया गया। एक और खबर है तहसील कोट छुट्टा से। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक
मुल्क भर की तरह खानपुर मंजवाला में भी मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मुजालिस का सिलसिला जारी। 5 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस सैयद चरागबी शाह के घर से बरामद हुआ। अज़ादारान ने सीना कोबी और जंजीर ज़नी की। खानपुर पुलिस चौकी की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। चौकी इंचार्ज जुलूस की निगरानी करते रहे। राजनपुर से फाजलपुर से मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज हाजीपुर जिगर गोशा नारोवाल शहनशाह साहबजादा ख्वाजा सालिहा मोहम्मद साईं पीर ऑफ हाजीपुर शरीफ अपने जद अमजद अजीम बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद नारोवाल शहनशाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर मौजूद बाब जन्नत की सालाना तकरीब कफल कशाई मशहूर मेला दरी के मौके पर हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। इस मौके पर उनके छोटे भाई साहबजादा ख्वाजा मोहम्मद वकास साईं, साहबजादा ख्वाजा ख्वाबाब फरीद साईं, मलिक इमरान हसीब कट, अब्दुल मालिक खान गोपांग, जाम करीम नवाज मेसर, मलिक जमील अहमद कुलिया, जुबैर अहमद कुलिया और दीगर हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन अकीदतमंद और दोस्त अहबाब इस पुरफैज़ मौके पर हाजिर हुए। तमाम पीर भाइयों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हाजीपुर शरीफ तहसील जामपुर ज़िला राजनपुर। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। ब्यूरो चीफ मसर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक RPO मोहम्मद सलीम का शदीद बारिशों की पेशगोई पर चारों इस्लाम में खसूसी इक़दामात करने के अहकाम जारी। सैलाबज़दा इलाकों और कचा के थाना जात और सर्कल दफातर में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। हंगामी सूरत हाल और खतरात से लोगों को बर वक्त आगाह किया जाएगा। 6 ta 15 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद सलीम ने चारों इस्लाह की ज़रिए सरबराहान को खसूसी इक़दामात करने की अहकाम जारी किए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। मोहम्मद आसम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल के इलाका किला अहमदाबाद में शोहर की बीवी पर बेईमाना तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। ऑन न्यूज़ TV चैनल को मसूल होने वाली वीडियो में शोहर को बीवी पर डंडे से बेईमाना तशद्दुद करते वाज़िया देखा जा सकता है। जालिम शोहर मोहसिन बीवी को सड़क पर घसीटता रहा, गालम गलोच भी करता रहा। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नशे का आदी है। मुलजिम ने बीवी को मेके से रकम ना लाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले इलाका के मुताबिक 4 बच्चों का बाप मोहसिन आए रोज़ बीवी पर तशद्दुद करता है। पुलिस किला अहमदाबाद का कहना है कि उन्हें अभी कोई दरख्वास्त मसूल नहीं हुई। वक़ूए का इल्म वायरल वीडियो से हुआ। पुलिस का कहना है कि वीडियो मिलते ही मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। और इधर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आदिल शाह बुखारी सरकारी टीचर से महरूम, स्कूल के तलबा तालिबात सरापा एहतजाज। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जामरा में अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल कादर मूसा कच्चा भट्टा चक नंबर 19 NP में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आदिल शाह बुखारी के तलबा तालिबात ने एहतजाज करते हुए मीडिया से कहा कि हमारे स्कूल में एक भी हेडमास्टर खादिम हुसैन हैं, बाकी कोई गवर्नमेंट टीचर्स स्कूल में तैनात नहीं किए गए, जिसमें हम सबसे महरूम हो जाते हैं। उन्होंने महकमा तालीम के आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुकामी जनरल कौंसलर रईस अजमल भाइयों ने बताया कि स्कूल में 550 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं, मगर टीचर सिर्फ एक है और ना ही माली चौकीदार है। टीचर ना होने की वजह से बच्चों की तालीम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। वज़ीर तालीम और तमाम आला अफसरान से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आदिल शाह बुखारी में बाकी गवर्नमेंट टीचर तैनात किए जाएं ताकि हमारे इलाके के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। मज़ीद ये कि अगर इस चीज़ का एक्शन ना लिया गया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका शाहीवाला कुंडेवाला पुल मेराना अड्डा किला दड़ावड़ के ताजरों का वापटा के खिलाफ एहतजाज। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि हम अपने बच्चों का पेट बहुत मुश्किल से पाल रहे हैं। हुकूमत ने 0 यूनिट बिजली बिल भी 7,000 का भेज दिया। मजीद उनका कहना है कि हुकूमत दुकानों पर लगाए गए अजाफी टैक्स को फौरन ख़त्म करे। एक तरह कमर तोड़ महंगाई है तो दूसरी जानिब हुकूमत ने इतने बिल भेज दिए जो गरीब आवाम के साथ सरासर जुल्म है। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। ब्यूरो चीफ मलिक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ज़िला ननकाना सैयद खालिद हमदानी की हिदायत पर यौम शहदाए पंजाब पुलिस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहदाए पुलिस ननकाना के ख़ानदानों को शिरकत की खसूसी दावत दी गई। शहदा के बुजुर्गों को तकरीब का मेहमान खसूसी बनाया गया। DPO की पुलिस लाइन आमद पर ज़िले पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा की यादगार पर सलामी पेश की। DPO सैयद खालिद हमदानी, SP इन्वेस्टिगेशन ननकाना खालिद रशीद खान ने शहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। तकरीब में खिताब के दौरान DPO सैयद खालिद हमदानी का कहना था कि आज का दिन पंजाब पुलिस के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जा रहा है। शहादत एक एजाज़ है जो अल्लाह पाक के मुंतखब करदा लोगों को मिलता है। आज पंजाब पुलिस का सर अगर फख्र से बुलंद है तो इसकी वजह हमारे यही शहीद भाई और बेटे हैं। सर बुलंदी की ये दस्तार हमारे पास शहदा की अमानत है।
पंजाब पुलिस ननकाना के अजीम बेटों ने फ़र्ज की खातिर जो कुर्बानियाँ पेश की वो कभी रायगाह नहीं जाएंगी। DPO का मज़ीद कहना था कि शोहदाए ननकाना पुलिस के वर्सा हमारे लिए एक ख़ानदान की मानद है। शोहदा के वर्सा के साथ तमाम किस्म का तामन यकीनी बनाया जाएगा। शोहदाए पंजाब पुलिस हमारा कीमती असासा है। दरियासना DPO ने शोहदाए पुलिस के वर्सा से मसाइल दरियाफ्त किए, फौरी हल की यकीन दहानी भी करवाई। तकरीब के इख्तिताम पर शोहदा के बच्चों को तोहफे पेश किए गए। शोहदा के बुजुर्गों और अहले खाना ने पंजाब पुलिस ननकाना के इस इक़दाम को सराहा और DPO का खैर मकदम किया। एक और खबर है पतोकी से। मोहम्मद रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ पतोकी में भी यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आमिर भट्ट की क़यादत में रैली भी निकाली गई। पतोकी में कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि कश्मीर में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जाए। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी पतोकी गुलाम मुस्तफ़ा, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिद महमूद, रेस्क्यू ऑफिसर राबता खलील, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पतोकी शेख एहसन सलीम के अलावा सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, रेस्क्यू 1112 तलबा, ताशरान समेत आम शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार के आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में रैली भी निकाली गई। म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर से शुरू होकर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रुख करते हैं उकाड़ा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से नकदी और नाजायज असला भी बरामद। मुल्जिमान डकैती जैसे मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान की शनाख्त इकबाल अब्दुल गफ्फार शहजाद के नामों से हुई। इस हवाले से DPO हसन इकबाल ने कहा कि मुल्जिमान ने मुतअद्दिद थानों की हदूद में वारदातों का इंकशाफ किया। ऐसे मुल्जिमान किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे लोगों का ठिकाना जेल है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। एक और खबर है उकाड़ा से। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से नकदी और नाजायज असला भी बरामद। मुल्जिमान डकैती जैसे मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं लोधरा की जानिब। गुलाम मुर्तज़ा परिहार की रिपोर्ट के मुताबिक यौम एहतिसाल कश्मीर के हवाले से हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। ज़िले इंसामिया और लोधरा की गैबर अवाम ने मिलकर फैसल मस्जिद लोधरा से ज़िला कौंसल तक एहतजाजी रैली निकाली। यौम एहतिसाल कश्मीर रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यासिर कर रहे थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ओज़ोबा अजीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद फराज अवान समेत तमाम अफसरान भी रैली में शरीक थे। रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम, अंजुमन ताशरान के नुमाइंदगान, सरकारी महकमों के अफसरान, मुलाजमीन, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान, सियासी समाजी तंजीमों के कारकुनान, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, ख़वातीन और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। एहतजाजी रैली के शुरका ने कश्मीरी भाइयों के हकूक़ की सल्बी और भारत के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ नारों पर मुश्तमिल बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका ने मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम पर भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए कश्मीरी परचम और झंडे लहरा रहे थे। पुरअमन एहतजाजी रैली के जरिए अक़वाम आलम को ठोस पैगाम दिया गया। तहसील दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से कासमी चौक तक रैली का इनेकाद किया। तहसील कहरोड़पका में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से चौक बुखारी तक अलामती एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली के इनेकाद के मौके पर 1-1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई।